Good morning, friends. This is for the question answer of the chapter. This video is for the question answer of the chapter we have already studied. जिस चैप्टर को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 1, एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट. विच प्लाइट इज द स्पीकर रेफरिंग टू. ये किस प्लाइट मतलब दुर्भाग्य. आंग सान सूची और आंग सान सूकी वॉज इन द जेल, imprisoned by the present government of Burma, and so her son was in Oslo to get the award, to get the Nobel Peace Prize, and there he was delivering the speech, and so he was explaining his conditions why Aung San Suu Kyi has not come there. ये सूची भी और सूकी भी दोनों उच्चारण होता है, तो कुछ लोग सूची बोलते हैं, कुछ लोग सूकी बोलते हैं. And no one must underestimate that plight. That plight means the problem faced by that great lady Aung San Suu Kyi. No one could underestimate that. The importance of her struggle was so immense that no one should underestimate that, because it was symbolically the fight against the tyranny done by the government, and so we accept the logic given by her son, and so no one should really underestimate the importance of the struggle of Aung San Suu Kyi for the freedom of democracy, for the establishment of democratic system in the government in Burma. Peace, freedom and democracy are essential for human being. Do you agree? Give your own opinion. Yes, I am fully agree with this statement that peace, freedom and democracy are essential for human being. Human being के लिए बहुत ही essential है, must है peace, freedom और democracy. Without peace, we cannot make a progress. Freedom, without freedom, we cannot get our human importance, human worth. Democracy, in democracy, all people get equal chance. All people get the right to vote, and in this way, they can speak their own feelings. They can share their demands, and they can run the government according to your own mindset. That's why peace, freedom, and democracy are essential for human being. The Nobel Peace Prize belongs not only to Aung San Suu Kyi but also to all men, women and children of Burma. Why does Edis say so? श्रीमान एडिस ने ऐसा इसलिए बोला कि नोबेल पीस प्राइज जो आंग सान सू की को मिला वह संपूर्ण पूरे देश के मनुष्यों, मर्दों, औरतों और बच्चों के नाम था. क्यों? इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु इज़ कॉल्ड लीडर, फ्रीडम फाइटर. कोई भी नेता उसको सम्मान मिलेगा तो कभी नहीं बोलेगा कि वो सिर्फ उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि है. सो ही इज डिलीवरिंग इट, ही इज ऑफरिंग, ही इज एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ बर्मा. All the people of the country are the participants of this award, are able to be the shareholder of this award. It means he is here taking that whatever Aung San Suu Kyi is doing as a revolution, as a freedom fighting, as a freedom struggle, all are for men, women and children of Burma. It is not her personal self. It is not her personal benefit. So the beauty of genuine brotherhood and peace is more precious than diamond or silver or gold. Precious means कीमती. तो ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, सच्चाई, सही मायने में जो भाईचारा और शांति है वह किसी भी हीरा, चांदी या सोना से ज़्यादा कीमती है. कैसे? वाई डज एडिस claim so? Do you agree with him? Yes, I also agree with him fully in this regard, that the beauty of genuine brotherhood and peace is more precious than diamond or silver or gold. Yeah, I am agree, because
without brotherhood, without peace, one cannot enjoy the real feeling of humanity. If we are not feeling the sense of brotherhood, we are not having the peace, then our country, our society may not develop. प्रोग्रेस नहीं होगा हमारी समाज का, तो हमारे समाज का जब विकास नहीं होगा तो हमें मज़ा नहीं आएगा. तो सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट अमेरिकन पर्सन. His name was Martin Luther King Jr. and he had said this. And so we all agree to the meaning of this line, that the beauty of genuine brotherhood and peace is more precious than diamond or silver or gold. Then group discussion का ये question you will do in your groups. After that ये composition section के लिए letter writing, ये सब आप लेटर राइटिंग लिखेंगे और इसके लिए राइटिंग सेक्शन में मेरा वीडियो बनेगा. उसमें सारा क्वेश्चन टच किया जाएगा. आपके एग्जामिनेशन के बहुत पहले ये कंपोजिशन के नाम पर भी वीडियो मेरा आ जाएगा आपके सामने. ये आपको वर्ड स्टडी ये मैं हर चैप्टर में सबसे पहले करता हूँ. तो माय डियर फ्रेंड, इसको करने के पहले मैं आपको सूचना दे दूँ कि इसी महीने की 15 तारीख यानी 15 अगस्त से मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट भी, हिंदी विषय इसी चैनल से, ललन ठाकुर टीचेज इंग्लिश चैनल का नाम है, और यहाँ से अंग्रेजी पढ़ाई हो रही है. और 15 अगस्त से मैं आपको हिंदी विषय भी पढ़ाऊँगा. उसी तरह से वीडियो बनाऊँगा जैसे अंग्रेजी का वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ और आप उसका बेनिफिट उठा रहे हैं. ठीक इसी तरह से आप हिंदी सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकेंगे मेरे वीडियो की हेल्प से. सो वेट फॉर 15 अगस्त. फ्रॉम दैट डे यू विल हैव, आपको मिलेगा हिंदी विषय के लिए भी वीडियो, जिससे आपको लाभ मिलेगा. आफ्टर दैट नाउ अगेन कम टू द पॉइंट. करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. निम्नलिखित शब्दों के स्पेलिंग शुद्ध करें. सर्कमस्टांसेज में एस की जगह सी करेंगे. स्ट्रगल में डबल एल नहीं, एक एल होगा. जेनुइन में GENU, देखिए भाई GENUINE. परमिट में एक टी, सिंगल टी करेंगे, डबल टी है. सेक्रेटरी SECRETARY, ठीक है, SECRETARY, टी और ओ के बीच में ए होगा. प्रीसियस PRECIOUS, प्रीसियस PRECIOUS, प्रीसियस. डिस्ट्रीब्यूशन में DESTITU TION, यहाँ एस हटा के टी करेंगे. ये सेल्फिशनेस में एस के बाद में एच होगा, सेल्फिश FISHNESS. टिरैनी TYRANNY, टिरैनी. आफ्टर दैट नाउ दिस क्वेश्चन, ये एक वर्ड देना है इस के लिए. तो एक्ट ऑफ डेडिकेशन इज कॉल्ड सेक्रीफाइस. सोसाइटी, कंट्री साइड एंड टाउन दोनों है इसका मीनिंग. टू पुट वन विद इन द अदर टू सेट फ्री. subjugation, freedom, emancipation, extreme bodily pain, battered and tortured. After that ये आपको मैच करना है. तो ये डिटेंशन लगाएंगे 4 से, प्लाइट 5th, टिरैनी 6, इसमें उस पन्ने में है. तो ये वर्दी 3 और लोनली 1, रीजन 2, ये आप मैच कर लेंगे. इधर का मैंने लिख दिया है सामने. आफ्टर दैट ये फॉर्मेशन करना है वर्ड का. EST लगा के, LY लगा के, एल लगा के, हुड लगा के, EN लगा के नया वर्ड बनाइए. तो एक एक मैंने बना दिया आपके लिए. हेवी, हेवीएस्ट. क्लियर, क्लियरर या क्लियरेस्ट भी, क्लियरेस्ट, क्लियरली भी. बोल्डली, हाईली. सेल्फिश, 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 सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस NESS इसमें लगाइए. सेल्फिश FISH NESS, सेल्फिशनेस. स्लोली, ब्राइटेस्ट, ब्रदर, ब्रदरहुड, अम्बलेस्ट, लवली, ऑन, हार्डेस्ट, म्यूजिकल. इसका और तरह से भी बनेगा, एक एक मैंने बनाया. आफ्टर दैट ग्रामर में आइए. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं
कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ग्रामर सेक्शन में मेरा वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, खूब बढ़िया। आप उसको मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, मेरा फोटो जहाँ दिखाई दे रहा है उसको आप टच करें, प्लीज़ टच दैट। टच करेंगे तो आपको निकलेगा प्ले लिस्ट, उस प्ले लिस्ट को भी टच करें तो आपको मिलेगा अपने क्लास का स्टैंडर्ड 10th का। उसमें आप खोजिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये पूरी अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। इसका वीडियो स्पेशल बना करके ग्रामर सेक्शन में भी ये वीडियो है और आपके क्लास के नाम पर भी है। आप उसमें खोजिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो फिर आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ये सारा है, इसमें आपको मेन थीम वही है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। तो ये ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी में मैंने ईज लगाया है कि दोनों का यूज एक साथ होता है, सत्य और ईमानदारी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर नहीं, क्योंकि इसको दो नहीं माना जाता है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी को एक साथ ही माना जाता है। सो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज। ये पूजा रानी एंड मोना आर, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर, ये दो है, इंजूरियस टू हेल्थ। ईच ऑफ द बॉयज, ईच से शुरू हुआ तो यहाँ हैज होगा। ए कमिटी हैज, आफ्टर दैट द ज्यूरी आर, यहाँ ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, जो डिवाइड हो गया तो प्लूरल होगा, एक साथ रहेगा तो उसको सिंगुलर करेंगे। ज्यूरी है दोनों के तौर पर यूज होता है। ज्यूरी डिवाइड हो गया तो बहुत हो गया, प्लूरल हो गया। अगर एक साथ कोई काम करेगा तो उसमें ईज होगा। मीजल्स बीमारी का नाम है तो मीजल्स ईज। 70 रुपीज़ ईज, 70 रुपीज़ आर नहीं, 70 रुपीज़ एक अंक की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर है। ये बंच ऑफ कीज हैज, ये बंच के लिए हुआ, हैज का यूज कीज के लिए नहीं। द रेस्ट ऑफ द बुक्स वाज पब्लिश्ड। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर चैप्टर फिनिश्ड। आफ्टर दैट दिस ट्रांसलेशन आई हैव मेड दिस ऑल्सो। 2 और 2 4 होता है, 2 and 2 makes 4। मेरे शिक्षक ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। माई टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ट्रूथ एंड ऑनर, सच्चाई और ईमानदारी कभी परास्त नहीं होती। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज नेवर डिफीटेड। सूर्य कभी पूरब से उग रहा, अभी पूरब से उग रहा है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट नाउ। ओके, पेड़ों के अलावा वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। देयर इज नथिंग सीन एक्सेप्ट ट्रीज। सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊँगा। आई विल कम होम बिफोर द सनसेट्स। बेईमान कभी भी उदार नहीं होते। बेईमान लोग कभी उदार नहीं होते, छोटे दिल के होते हैं। बड़े लोग ईमानदार लोग होते हैं, वो लोग आपको गलती कीजिएगा तो माफ़ कर देंगे, उदार होते हैं, लिबरल होते हैं। लेकिन जो बेईमान आदमी है वो आपकी गलती का इंतजार करता रहेगा। जैसे ही आप गलती करते हुए पाएगा आपको फांसी दे देगा, छोड़ेगा नहीं आपको, वो माफ़ नहीं करता है। तो सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। आई विल कम होम बिफोर द सनसेट्स। बेईमान कभी भी उदार नहीं होते। द डिसऑनेस्ट आर नेवर लिबरल। लिबरल LIBERAL। टहलना एवं हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वॉकिंग एंड लाफिंग आर गुड फॉर हेल्थ। ओके, डॉक्टर ने धूम्रपान मना किया। द डॉक्टर फॉरवर्ड स्मोकिंग। क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? डज द अर्थ मूव अराउंड द सन? So my dear friends, thank you for viewing. Have a nice day.